स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय सेना अकेडमी में देहरादून में आपको बता दें कि ऐतिहासिक ड्रिल स्क्वायर में 157वीं पासिंग आउट परेड का भव्य और गरिमामय आयोजन किया जा रहा है। बताते चलें कि गौरव, परंपरा और सैन्य अनुशासन के परिपूर्ण इस अवसर पर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड की समीक्षा की। जहां सीधी तस्वीरें हम आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां आपको बताते चलें कि नवनियुक्त अधिकारियों को भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त करने की बधाई दी गई। तो वहीं आपको बता दें कि बड़े हैं, किसकी जुर्रत आग उठाए। Ladies and gentlemen, the parade commander is now marching back to take his position in order to lead the parade. The immaculate drill movements, exemplary bearing and roaring command give us a glimpse of a leader in making. देश की आजादी के पश्चात 10 दिसंबर 1965 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अकादमी को निशान प्रदान किया। अकादमी का नया निशान 15 दिसंबर 1976 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा प्रदान किया गया था। इसी दिन पुराने निशान को ऐतिहासिक भारतीय सैन्य अकादमी भवन में यादगार चिन्ह का स्थान मिला। परेड इस समय विजय भारत की धुन पर मार्च कर रही है। नौजवानों का ये जोश, उनका उत्साह, एक साथ उठते ये हाथ, एक साथ बढ़ते ये कदम, उभरा हुआ सीना प्रमाणित करता है इस बात को कि देश सुरक्षित है इन हाथों में। ये कदम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तिरंगे का सर सदा ऊंचा रहेगा। इनके कदमों की आवाज हमें बता रही है कि आखिरी गोली, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे ये वीर। देवियों और सज्जनों, जब भारतीय सैन्य अकादमी का निशान आपके सामने से गुजरे तो कृपया खड़े होकर निशान को सम्मान दें एवं वर्दीधारी सल्यूट करें। The number of our alumni who have been decorated in war is legion. Most of them have had their baptism by fire in the wars since independence. Some where blizzard and snowstorms rule. Some where the wind blows full of sand. Some where the waves hold argument with the sky, and some in the uncharted space above. But like professional soldiers, they were conscious of the hazards of the profession they had chosen and were aware of the contribution they were making to safeguard the sovereignty of our nation. As the Nishan Toli approaches you, you are requested to rise. Those in uniform will salute.
Ladies and gentlemen, you will notice that the first contingent approaching the saluting dash is carrying a red flag. This is the Chief of the Army Staff banner, which is presented every term to the champion company and therefore has the proud privilege of being a part of the first contingent on parade. The first officer cadet leading the parade is Academy Under Officer Ankit Chaudhary. He is followed by a contingent of battalion appointments led by Battalion Under Officer Yuvraj Singh Chauhan. Behind them is the first contingent, the champion company of the previous term, proudly led by Senior Under Officer Lovejeet Singh. The second contingent is being led by Senior Under Officer Shashank Singh Bish. The third contingent is being led by Senior Under Officer Saurabh Kumar. The Nishan Toll is proudly carrying the Indian Military Academy colors, is led by Senior Under Officer Shubham Rawat, and the escorts are Company Sergeant Major Aditya Sanjay Bhakre and Company Sergeant Major Prateek Gupta. The fourth contingent is being led by Senior Under Officer Parth Saki Sharma. The fifth contingent is being led by Senior Under Officer Abhishek Guleria. The sixth contingent is being led by Senior Under Officer Manohar Khileri. Leading the last contingent of battalion appointments is Battalion Under Officer Shivam. Bringing up the rear of the parade is Academy Cadet Adjutant Nishkal Dwivedi, marching all by himself. And at the end, mounted on his charger, is the adjutant of the Indian Military Academy, Lieutenant Colonel Raghav Swarup Gupta. कदम से कदम मिलाकर चलते इन वीरों का आज यही उद्घोष है। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। Ladies and gentlemen, the parade is now marching on the inspiring tune of Sare Jahan Se Acha. In all nations and at all times, martial music has accompanied feats of arms, serving the twofold purpose of inspiring the troops to fight and as a method of conveying orders. It was used in times of battle as means of invoking that grand passion which the purest of orations could not. तो
ये सीधी तस्वीरें थी देहरादून से परेड ग्राउंड से। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से ही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जेल विकास बोर्ड की बैठक की और इस दौरान आपको बता दें कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जहां राज्य के सभी जेलों में एक जेल एक प्रोजेक्ट योजना लागू करने के आदेश उनकी ओर से दिए गए। इसके तहत जेलों में बंदियों के कौशल विकास के लिए नियमित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और जहां ITI के माध्यम से भी विभिन्न केंद्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि जेलों के विकास के लिए राज्य का अपना एक अलग ही मॉडल तैयार किया जाए, जिसमें कि मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया है कि जेलों में तैयार उत्पादों का सरकारी कार्यालयों में भी उपयोग किया जाए। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सितारगंज, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, हल्द्वानी और रुड़की में लॉन्ड्री मशीनों की स्थापना की जाएगी, जहां सितारगंज जेल में कच्ची घानी, सरसों तेल संयंत्र और मशरूम की फार्मिंग की सहमति भी दी गई है। देखिए, ये वर्ष 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार एक जेल विकास बोर्ड का गठन किया गया था, जिसके माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष हैं और इसमें हमारे मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह या सचिव गृह और IG जेल, ये इसके प्रमुख रूप से सदस्य होते हैं। और तो आज जो मीटिंग हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसकी अध्यक्षता की। इत्तेफाक से वन मंत्री जी भी उसमें उपस्थित रहे और प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह सचिव और मैं और हमारे AIG जेल, इन सब। तो पहली जो पिछली मीटिंग थी उसमें जो कुछ निर्णय हुए थे कैदियों के कल्याण के लिए, तो सबसे पहले तो हमने उसका ब्यौरा माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया था और उसमें जो कल्याणकारी योजना थी उनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अप्रिशिएट भी किया गया। और उन्हीं के क्रम में जो आगे की हमारी योजनाएं हैं, तो वो योजनाएं तो लगभग 1 करोड़ रुपए की थी। तो अब आगे की, क्योंकि उनकी प्रगति को देखते हुए और उसमें जो हमें लाभ हुआ था उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सैद्धांतिक स्वीकृति दी है कि अब अगले चरण में इन्हीं कल्याणकारी योजनाओं के लिए 2.5 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से ही है, जहां नगर निगम के कार्यालय में शहर के शहरी विकास को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई और जिसमें गढ़वाल के कमिश्नर विनय शंकर पांडे भी मौजूद रहे। तो वह बैठक में शहर की सुविधाएं और अव्यवस्था से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे कि अतिक्रमण, ड्रेनेज सिस्टम, सफाई व्यवस्था और नगर निगम के वाहनों की संख्या बढ़ाने के विषय पर अधिकारियों ने इन मुद्दे के समाधान के लिए आवश्यक बजट और संसाधनों पर विस्तार से विचार किया है। जहां बैठक में तय किया गया है कि शहर की मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए योजनाएं तैयार की जाएंगी। जहां रायपुर के विधायक खजान दास ने बैठक के बाद कहा कि ऐसी बैठकें अब नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी ताकि समस्याओं का समाधान तेजी से हो सके। लेकर के चिंता व्यक्त की गई कि जैसे अभी स्मार्ट सिटी ने ड्रेनेज को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, जो दशनाथ चौराहा तक नाला बनाया गया उसके आगे नहीं बनाया है, जो सहारनपुर चौक तक उसको बनना था और इसको भी प्रस्तावित किया गया है। और आगे सफाई को लेकर के चिंता व्यक्त की, जो कूड़ा जगह जगह पड़ा रहता है उसका उठान हो। और कुछ, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पर नगर निगम में इस समय 280 है, वो गाड़ियाँ और बढ़ाने की बात कमिश्नर साहब ने आदेश किया है और गाड़ियाँ 500 के लगभग, उन्होंने कहा कि 500 के लगभग गाड़ियाँ होनी चाहिए और इस पर भी विचार किया गया और इसका बजट के लिए भी बात की गई है। और अतिक्रमण को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त की गई और अतिक्रमण जिस तरह से जो है आगे से हम हटा रहे हैं, पीछे से फिर वही अतिक्रमण हो रहा है, तो इसको बाकायदा इसको जो हमारे इंस्पेक्टर हैं निगम के, वो पूरी ड्यूटी अपने अपने क्षेत्रों में दे और इस तरह का अतिक्रमण न होने दें। जो नगर निगम का स्थापना दिवस मनाया गया इस सप्ताह, उसके साथ साथ ही विभिन्न जो हमारे जोनल कार्यालय हैं उनमें कैंप भी लगाए गए और निगम जनता के द्वार करके इसमें प्रयास ये किया गया कि जो निगम की समस्त सुविधाएं हैं, क्योंकि जोनल कार्यालयों में प्राय सारी फैसिलिटीज नहीं उपलब्ध होती हैं, इस बार सारी की सारी जो निगम के फंक्शंस हैं उन सभी की टीमें जोनल कार्यालयों में उपलब्ध कराई गई और जो व्यापक जन समस्याएं हैं प्रत्येक जोन की, जैसे कि कहीं पर बंदरों के संबंध में समस्या बताई गई, कहीं पर ड्रेनेज को लेकर के समस्या, जैसे कि अभी आपने भी मेंशन किया, तो इन सभी के व्यापक समाधान के लिए त्वरित स्पॉट निरीक्षण भी किए गए हैं और अब इन पे जल्द से जल्द समाधान निकालते हुए उन्हें सूचित भी किया जाएगा। खबर देहरादून से ही है, जहां आपको बता दें कि जनपद में बैंक ऑफ बड़ौदा की मनमानी पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है, जिससे कि बुजुर्ग विधवा कमलेश और उनकी
असहाय पुत्री प्रीति को न्याय मिल सका। तो वहीं आपको बता दें कि मामला 2023 का बताया जा रहा है, जब स्वर्गीय राजेंद्र पाल ने बैंक में से 13 लाख रुपए का ऋण लिया था और जहां बैंक के कहने पर उन्हें बीमा भी कराया गया। उनके आकस्मिक निधन के बाद बीमा कंपनी 2025 में क्लेम बैंक में जमा कर दिया गया, लेकिन आपको बता दें कि बैंक ने नो ड्यूज सर्टिफिकेट देने के बजाय 3.30 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग की और संपत्ति को जब्त कराने की धमकी भी दी गई। तो वहीं पीड़िता की शिकायत पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने मामले की जांच करवाई है और जिसमें कि बैंक की गलती सामने आई है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन ने 3.30 लाख रुपए की आरसी कटवा दी है और जिसके बाद बैंक ने 24 घंटे के भीतर प्रीति को चेक जारी किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री के राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण को लेकर भैरो घाटी हर्ष क्षेत्र में तनाव गहराता जा रहा है। आपको बताते चलें कि प्रस्तावित सड़क विस्तार के तहत हजारों हिमालयी देवदार पेड़ों के कटान की आशंका ने स्थानीय लोगों, पर्यावरण के कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों को एकजुट कर दिया है और इसके विरोध में देवदार बचाओ अभियान भी शुरू किया गया, जो कि धीरे धीरे अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। बताते चलें कि अभियान के तहत लोग देवदार के पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें बचाने का संकल्प लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि सांस्कृतिक चेतना और प्राकृतिक संरक्षण के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि हर्ष घाटी और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्र सदियों से घने देवदार के वनों के लिए जाने जाते हैं और जिन पर यहाँ की जलवायु, जल स्रोत और जैव विविधता निर्भर है। देखिए, गंगोत्री हाईवे में जो भी काम हो रहा है वो नियमों के तहत काम हो रहा है। एनजीटी और जो भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की हाई पावर कमेटी है उसकी स्वीकृति के उपरांत ही हो रहा है और सरकार का प्रयास है कि पर्यावरण और विकास दोनों को का संतुलन बनाते हुए काम होगा और हम नहीं चाहते हैं कि कहीं पर भी ऐसी स्थिति बने कि जिससे कि लोगों को दिक्कत हो। लेकिन चूंकि वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है और हमारा गंगोत्री जैसा धाम वहाँ पर स्थापित है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्र भी वहाँ पर है, तो उन सब चीज़ों को लेकर वो काम हो रहा है और अनुमति भारत सरकार देती है, वन अधिनियम के तहत अनुमति मिली हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से वहाँ पर काम होगा और शीघ्र काम होगा। देखिए, उत्तराखंड की विकट भौगोलिक परिस्थितियां किसी से छुपी हुई नहीं है और वैसे भी यहाँ जिस तरीके से लगातार आपदाएं आ रही हैं, जन जीवन को भारी नुकसान हो रहा है, उससे सरकार को सबक लेना चाहिए और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए, क्योंकि वृक्ष ही जो है हमको आपदाओं से बचाने का काम करते हैं, ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं और पर्यावरण की मजबूत ढाल के रूप में जो है वृक्षों को सभी जानते हैं। गंगोत्री हाईवे के चौड़ीकरण के लिए जिस तरीके से दुर्लभ प्रजाति के 6000 पेड़ों का कटान हो रहा है, ये निश्चित तौर पर चिंतनीय है। स्थानीय लोग हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, लगातार सरकार को चेताने और जगाने का काम कर रहे हैं कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना करें। आपको अगर सड़क चौड़ी करनी है तो उसके अन्य विकल्पों को आप तलाशें, क्यों आप जो है आसान तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार प्रचंड बहुमत के नशे में है, सत्ता के अहंकार में है, 6000 देवदार के वृक्षों को काटने से पीछे नहीं हट रही है। गंगोत्री में बढ़ रहे विरोधों के बीच में जहां देवदार के बहुत से वनों का कटान इसलिए हो रहा है कि वहाँ पे सड़क बननी है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे समझना भी बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुछ ऐसे विषय हैं कि जहाँ पेड़ों के कटने का विरोध है, वहीं गांव के लोग भी एक साथ जुटकर इन तमाम मुद्दों का भी विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये एक ऐसा टकराव है जिसके ऊपर गंभीरता से सोचना चाहिए। पहली बड़ी बात तो यह है कि गांव को उनकी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता, ये तो सबको स्वीकार्यता होगी। और ये भी मानना पड़ेगा कि हम अच्छे खड़े बड़े वनों को का पातन भी इसलिए ही ना कर दें कि एक चौड़ी सड़क को करना है। इसलिए ये आवश्यक होता है कि अब बहस और बातचीत ये हो कि सड़क भी बने, पर कैसी बने, ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा होना चाहिए। और सड़क ना बने ये मुद्दा स्वीकार नहीं किया जा सकता। लोग करेंगे क्योंकि राज्य मांगने के पीछे सब वो बात थी
जो कि हम भी बराबरी में चाहते थे, लेकिन हम अपने पर्यावरण को भी नहीं खो सकते। इसलिए अब बहस और बातचीत उस दिशा में हो, सड़क बने। आगामी शीतकालीन यात्रा, पर्यटन सीजन, क्रिसमस, नववर्ष और स्कूलों की छुट्टियों को देखते हुए देहरादून पुलिस के शहर में धरना प्रदर्शनों, जुलूसों और रैलियों पर कड़ा प्रतिबंध लागू कर दिया है। आपको बताते चले कि पुलिस के अनुसार इन दिनों देहरादून में बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है, जिससे कि यातायात व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव भी पड़ेगा और जहां आमजन को असुविधा से बचाने और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। तो वहीं जानकारी देते चलें कि पुलिस ने घंटाघर, गांधी पार्क, परेड ग्राउंड और आसपास के क्षेत्र, कनक चौक, एसले चौक के साथ साथ तमाम ऐसी जगहों को चिन्हित कर लिया है जहां स्थानों को प्रतिबंधित क्षेत्रों को भी घोषित किया गया। तो वहीं इन इलाकों में धरना प्रदर्शन, जुलूस, शोभा यात्रा, रैली, नारेबाजी और बिना अनुमति के लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी पूरी तरीके से रोक रहेगी। तो वहीं जानकारी देते चलें कि देहरादून की पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति के किसी भी आयोजन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि राजधानी में देखा गया कि जो है काफ़ी सारे जुलूस, धरना प्रदर्शन प्राय होते रहते हैं और इधर भी देखा गया कि काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जुलूस, धरना प्रदर्शन करते हैं, बट उनके द्वारा विधिवत जो है पुलिस प्रशासन से जो है अनुमति नहीं ली जाती, जिससे आमजन को भी दिक्कत होती है और साथ ही साथ ट्रैफिक की समस्या भी रहती है। जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा 163 BNSS के तहत जो एक आदेश जारी किया है, जिसमें कुछ जगहों को हमने प्रतिबंधित किया है और खासकर जिस तरह शीतकालीन यात्रा शुरू होने वाली है, अभी क्रिसमस और न्यू ईयर पर भी काफ़ी सारे हमारे जो है यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे और उनको भी काफ़ी सारी असुविधा झेलनी पड़ती है। तो इसको देखते हुए कुछ स्थानों को इसमें चिन्हित करके प्रतिबंधित किया गया। सिर्फ उन जुलूस की जो अनुमति विधि सम्मत लेते हैं अनुमति और जिनके रूट्स को निर्धारित किया जाता है, तो उनको ही अनुमति प्रदान की जाएगी और जो इसका उल्लंघन करेगा उसमें जो है 223 हमारी BNS की सेक्शन है, जिसके तहत जो आयोजक होंगे या जो उसके लीडर्स होंगे उनके विरुद्ध इसमें मुकदमा दर्ज करने के लिए सभी को निर्देश जारी किए गए हैं। अब खबर विकासनगर से है, जहां क्षेत्र में तहसील प्रशासन के अतिक्रमण को हटाने को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। जहां आपको बताते चले कि SSP विनोद कुमार के नेतृत्व में प्रशासन ने ईस्ट हॉप टाउन और साथ ही साथ बंचतीवाला क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। बताते चले कि SDM ने उनकी टीम ने 65 बीघा भूमि का अवैध कब्जे से पूरे तरीके से मुक्त कराया और जहां यह भूमि पहले भी भूमाफियों के द्वारा लगातार कब्जे में रही थी और जिस पर कि प्रशासन ने कठोर कार्रवाई करते हुए उसे कब्जे से मुक्त करा दिया है। तो वहीं बता दें कि SDM विनोद कुमार का कहना है कि कार्रवाई केवल एक शुरुआत है और आगे भी अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि मौसम विज्ञान के अनुसार 14 दिसंबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ राज्य में प्रभावित कर सकता है, जहां आपको बता दें कि जिससे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जिलों में ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की वर्षा और 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। फिलहाल राज्य में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। हालांकि कुछ स्थानों पर यह 1 से 2 डिग्री तक का चल रहा था। जहां आपको बता दें कि आने वाले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान की हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के बाद तापमान फिर से सामान्य स्तर पर लौटने की उम्मीद भी जताई गई। अगले जो है 5-7 दिन उत्तराखंड में ज्यादातर स्थानों पे मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 14 तारीख को एक जो है फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्र जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में वहां कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी मिलने की संभावना है। बाकी जो ज्यादातर स्थानों पर अगले 5 से 7 दिन जो है मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान की बात करें तो जो न्यूनतम तापमान है वो अभी उत्तराखंड में सामान्य के आसपास चल रहा है, कहीं कहीं 1-2 डिग्री ऊपर जो है मिनिमम टेम्परेचर चल रहा है। अगले 2-3 दिनों में जो है मिनिमम टेम्परेचर में 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है और उसके बाद फिर जो है मिनिमम टेम्परेचर जब WD निकल जाएगा तो फिर वापस से गिर करके सामान्य के आसपास पहुंचने की संभावना है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।